Welcome back, students. Today I will discuss couple of numericals based on Faraday laws of electromagnetic induction. Then it will be followed by different methods of production of induced EMF. We know when there is a change in flux, induced EMF is produced. This is a U-shaped frame. This is U-shaped frame and this vertical conductor is movable. Initially this conductor was at this position here. Initially it was here. Slowly it is dragged on this U-shaped frame. Let us suppose after certain time this conductor moves from initial position P0 Q0 to P1 Q1. So this is area generated by this vertical conductor when it goes from P0 Q0 to P1 Q1. If you continue its motion towards the right, then area generated will go on increasing. When it moves from P0 to P1, area generated is A1. If it moves from P1 to P2, this is additional area generated, this area of rectangle P1, P2, Q2, Q1. So therefore, if it is moved towards the right, area generated will go on increasing. In simple words, we can say कि if PQ is a Viper and when it is moved from P0 Q0 towards right, the area swept out by the Viper will go on increasing. ये पहले जब यहाँ से यहाँ गया तो इतना एरिया A1 क्लीन हो गया, फिर जब P1 से P2 गया एडिशनल एरिया दिस एरिया ये और क्लीन हो गया. सो टोटल एरिया क्लीन्ड बिकम्स A1 plus A2. इफ़ यू कंटिन्यू टू मूव इट टूवर्ड्स राइट, एरिया बढ़ता जाएगा. सो say there is magnetic field which is perpendicular to the page and directed inwards. पहले इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास कर रही थी, जो ये इतना था. जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, और फिर जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से जो जनरेट हुआ और ज़्यादा पास करेगी. So if there is magnetic field which is perpendicular to the page and directed inward, सारे यहाँ से लेके आगे तक, so number of magnetic field lines बढ़ती जाएगी जो उस generated area से पास करेगी. So if A is increasing, magnetic flux linked will increase and due to which EMF will be induced. And that EMF which is produced in this movable conductor is called motional EMF. ये हम कल कर चुके हैं. सो इसके ऊपर एक हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है. An aircraft with a wingspan of 40 meters flies with a speed 180 km/h in eastward direction in northern hemisphere where vertical component of Earth's magnetic field is 1.75 into 10⁻⁻⁵ Tesla. Find out EMF induced across the tips of the aircraft. तो if aircraft is going towards east means towards नूर महल, from railway station to नूर महल इस तरफ जा रहा है, तो उसके विंग जो हैं, जो पंख हैं, पंख भी इसके टूवर्ड्स नूर महल जाएंगे. करनाल में जो मैग्नेटिक फील्ड है
Not only in Karnal, in most of the places, magnetic field is not horizontal. It is not parallel to the surface of Earth, या यूं कह लो GT रोड के पैरेलल नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है. इफ़ दिस इज GT रोड, दिस डॉटेड लाइन इज GT रोड, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. And as I told you yesterday, the magnetic field of Earth is from Delhi to Chandigarh. तो ये this is a horizontal component of Earth's magnetic field. This is vertical component of Earth's magnetic. Vertical component बिल्कुल अर्थ के नीचे की तरफ, जैसे ये यहाँ से सेब जो है नीचे गिरा, ऐसे डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब हवाई जहाज का पंख, या यूं कह लो कि जब तुम अपनी बाजू को हॉरिजॉन्टली फैला के शोल्डर की तरफ, नूर महल की तरफ जाओगे, तो जैसे दिस इज, ये आप अपनी आर्म को ऐसे रखोगे एंड मूव टूवर्ड्स नूर महल, तो दिस हैंड विल जनरेट एरिया. यह हैंड के बजाय ये जो पंख है हवाई जहाज का, इसको यूं कह लो जैसे ब्रूम है, झाड़ू है, झाड़ू आप सड़क के ऊपर, ये पैरेलल टू दिस इज GT रोड. GT रोड के पैरेलल जो है ऐसे इसको इधर लेके जा रहे हैं. सो एरिया जनरेटेड विल इंक्रीज, या यूं कह लो इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज विंग ऑफ एयरक्राफ्ट. ये इधर जा रहा है, इतना लंबा है, इधर जा रहा है, तो एरिया जनरेटेड बढ़ता जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रोड एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड. सो एंगल बिटवीन एरिया जनरेटेड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रोड एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एरिया जो जनरेट हुआ दैट इज वर्टिकली अपवर्ड. सो एंगल बिटवीन एरिया एंड vertical component of this magnetic field is 180. So due to increase in area, what will happen? Magnetic flux linked with it will decrease, and in EMF will be induced, and that induced EMF is given by this. Induced EMF is vertical component of Earth's magnetic field into length of conductor into velocity of the conductor. One thing more, what about the horizontal component? Horizontal component will be parallel to the GT road, and area generated will be in upward direction. This is direction of area generated. This is horizontal component of Earth's magnetic field. इन दोनों के बीच में एंगल 90. So magnetic flux due to horizontal component, B की जगह B horizontal and area generated and cos of 90 head angle. So this flux is 0. But if you talk about vertical component के कारण magnetic flux, this is vertical component into area into इनके बीच में एंगल 180, BB into A, cos 180 is -1. तो ये एरिया जनरेटेड बढ़ता जाएगा, उसके कारण फ्लक्स ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट भी बढ़ेगा, एंड EMF विल बी जनरेटेड एंड दैट इज गिवन बाय ये EMF ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट. तो हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी इज गिवन 1080 किलोमीटर पर आवर. इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर इट विल बी 25. सो वेलोसिटी इज 180 kilometer per hour, which means if you convert it, it will be 20. I'm sorry. It will be 300 meter per second. So EMF induce vertical component to velocity into length. So you can calculate it will be 0.21 volt. Now another question, the railway track running north south means जो हमारा GT रोड के पैरेलल ट्रैक जा रहा है, it runs north to south, has two parallel rails. ये जैसे these are rails, ये दो लाइंस, ये रेल्स है,
और दिस इज़ एक्सल ऑफ ट्रेन, जब ट्रेन जाएगी ये उसके पहिए हैं, एंड these wheels are joined with the help of a axle, so this axle will move in this direction. I repeat, these are, ये रेल है, एक ये है पटड़ी और एक ये, और ये कनेक्ट, व्हील को कनेक्ट करने वाला एक्सल। तो इसके किनारों के बीच में, ये किनारा और ये किनारा, इसके किनारों के बीच में जो ईएमएफ जनरेट हुई जब ट्रेन चल रही है पटड़ी के ऊपर, वो निकालनी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज 1.0 मीटर। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। V is given 90 kilometer per hour. Horizontal component is given, and angle of dip is also given. So this is angle of dip जो magnetic field ने horizontal, ये horizontal है, horizontal से के साथ जो magnetic field ने angle बनाया, that is called angle of dip. So if it is B, magnetic field of Earth, तो resolve this B into two components. This is horizontal component, this is vertical component, and we know VH will be B cos delta, and from here B is, B निकल जाएगा, BH upon cos delta. So cos delta, delta is given 60, so you can calculate this is the magnetic field of Earth. Vertical component निकालना हो तो VV is equal to B sin delta, so you can calculate, it is 0.3 into root 3 10 power minus 4 Tesla. Yeah. We also know VB upon VH is 10 delta. From here VB can be calculated, ये आ जाएगा। And this railway track is on railway track, a train is running at a speed of 90 km per hour. So EMF induced due to vertical component, it is given by this VB LV. तो substitute values, this is 1.3 into 10 power minus 3 volt. Now another question. A metallic rod of length L is rotated at constant angular velocity omega normal to a uniform magnetic field. Derive expression for induced EMF, induced current, heat produce. से आपका जो पेन है उसको आप टेबल पे रखते हैं ऐसे, और इसका एक किनारा पकड़ लेते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं. सो टिप ऑफ द पेन विल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ. सो दिस इज़ अ रॉड, इट्स लेंथ इज L, एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इट इज़ परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. सो जैसे ही ये रॉड ओ पी से आप इसको घुमा के इधर ले जाएंगे, ओ पी से ओ पी डैश या ओ पी 1, तो पहले रॉड यहाँ थी, अब यहाँ इसको रोटेट किया आपने. सो दिस इज़ द एरिया जनरेटेड. इस इतने एरिया से, सेगमेंट के एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है सपोज 100, थोड़ी देर बाद और इसको जब हम कॉन्टिन्यूसली घुमाते जाएंगे, रॉड यहाँ पहुँच जाएगी, सेगमेंट का एरिया बढ़ जाएगा. तो अब इस एरिया से जो कि है अब ओ पी 1, ओ पी पी 1 पी 2, ये सारा एरिया, इस सारे एरिया से जो शेडेड है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और ज़्यादा पास करेगी. सो वी कैन से जैसे जैसे रॉड घूमती जाएगी एरिया जनरेटेड बढ़ता जाएगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उस जनरेटेड एरिया से पास करेगी वो भी बढ़ती जाएगी, और फ्लक्स बढ़ता जाएगा. और इसमें रॉड में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. एक किनारा इसका पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा किनारा नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ईएमएफ क्रिएट होगी. दैट वी वांट टू कैलकुलेट. So let us suppose capital T is the time taken by a rod to complete one revolution. जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एरिया जनरेटेड आप वर्टिकली अपवर्ड भी ले सकते हो, अगर आप टेबल पे घुमा रहे हो तो इसको नीचे की तरफ भी ले सकते हो.
तो यू मे टेक एरिया जनरेटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ एरिया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो एरिया अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, दिस इज एरिया अपवर्ड, सो दोनों के बीच में एंगल 180. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दिस इज एरिया. तो इंक्रीज इन फ्लक्स, पहले जब रॉड यहाँ थी तो फ्लक्स वॉज 0, नो एरिया वॉज जनरेटेड. जब ये एक राउंड लगा देगी रॉड तो एरिया जनरेटेड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड. सो बी इंटू एरिया जनरेटेड इंटू कॉस 180. इंक्रीज इन फ्लक्स क्या होगी, इनिशियल फ्लक्स वॉज 0, फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos of 180, this is BA minus, and BA is pi L square. So this is the final flux. The change in flux या increase in flux is final minus initial. So it is minus B pi L square minus 0. So यही increase in flux होगा, जो phi2 है वो ही इंक्रीज इन फ्लक्स होगा. सो इंक्रीज इन फ्लक्स ही आ गया. वी नो इंड्यूस ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, और डी फाई की वैल्यू ये रही माइनस, यहाँ से ये कॉस 180 की वैल्यू पुट करके माइनस बी पाई एल स्क्वायर हो जाएगा. डी टी के बजाय टाइम टी है. सो इफ़ यू वांट टू राइट 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो इस 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो ये आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ. लेकिन अगर ये नहीं लिखना हो, जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो आई वॉन्ट टू राइट दिस इंड्यूस ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. वी नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज थीटा बाई टी. जब कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर लगा देता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π रेडियन डिवाइडेड बाय एक राउंड का टाइम. So omega is 2π by t and t is 2π upon omega. So ये रही हमारी t की वैल्यू 2π upon omega. पाई से पाई कट गया and it gives you induced EMF is equal to minus half BL square omega. So this is induced EMF across the ends of a rod which is rotated in a horizontal plane. Induced current एप्सिलॉन अपॉन आर हो जाएगा. पुट करिए एप्सिलॉन की वैल्यू आ गया. हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी, यू नो इट इज आई स्क्वायर आर टी. सो आई की वैल्यू पुट कीजिए, ये आई का स्क्वायर और आर टी, इट गिव्स अस हीट प्रोड्यूस. नाउ मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ. We know phi is equal to VA cos theta. So as you know, whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced. ये फेराडे लॉ है. तो phi कब चेंज होगा, B चेंज हो अकेला तो phi चेंज होगा, एरिया चेंज हो तो भी phi चेंज होगा, थीटा चेंज हो तो भी phi चेंज होगा. So we can say there are 3 methods to produce induced EMF. 3 तरह से हम phi चेंज कर सकते हैं. By changing B, by changing A, by changing theta. By changing theta is also called changing relative orientation of coil and magnetic field. By changing B, ये हमने पढ़ा था. दिस इज़ मैग्नेट और ये कॉइल है. अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, घटती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा. ये हम कर चुके हैं. एरिया वाला हमने अभी बताया आपको मोशनल ईएमएफ में. नाउ वी हैव बाय चेंजिंग थीटा.
सो आई हैव अ क्वाइल और ये मैग्नेटिक फील्ड है. इफ़ इट इज़ हेल्ड वर्टिकल देन एरिया की डायरेक्शन ये होगी, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0. आप ये मान लो कि ये जो हमारी डायरी है इसको हमने वर्टिकली होल्ड किया ऐसे, लाइक दिस डायरी इज हेल्ड vertically. You can say that this diary is a coil, and magnetic field is from left to right. So all the magnetic field lines will, maximum number of field lines will pass through this diary. अगर इसका एरिया लेना हो इसकी राइट साइड का इस तरफ का, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन भी मेरे राइट की तरफ होगी. So area is towards right, magnetic field is towards right, so angle between B and A is 0. ये जो मैंने ऐसे दिखाया है ये बेसिकली ये ऐसे है, लाइक वर्टिकली बिल्कुल ऐसे पेज के, तो एंगल इज 0. when I will rotate this coil, ये this coil can be rotated, this is axis of rotation. What will happen, angle between B vector and A vector will change, and because of which EMF will be induced. चलिए मान लेते हैं हम इसको यहाँ ऐसे नहीं दिखाने कि यहाँ दिखाते हैं. पहले ये कॉइल ऐसे थी और इसके एरिया की डायरेक्शन ये होगी. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया. एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम. ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कॉइल. सो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो इट इज 0. इफ आई रोटेट दिस कॉइल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यहाँ ले आया ये, तो इसका जो अब एरिया होगा तो ये होगी जो हमारी पहले वर्टिकल लाइन ये थी, ये यहाँ पहुँच गई. इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो ये होगा. तो जो परपेंडिकुलर पहले यहाँ था ऐसे पैरेलल टू बी वेक्टर, वो यहाँ से चल के इधर आ गया. सो दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर जब कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे घूम के आ गई. सो लेट अस सपोज ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल. तो इस पोजीशन में, इस टेढ़े वाली पोजीशन में फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इज गिवन बाय दिस, वेयर n is number of turns in the coil. Now you also know theta by t is omega, so from here theta is omega t. तो put theta is equal to omega t, ये आ जाएगा phi हमारे पास. इंड्यूस EMF अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके इक्वल होती है. पुट कीजिए फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने. ये इसमें एन बी एक कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. इसका डेरिवेटिव क्या होता है, आई थिंक यू नो इट. दिस विल बी माइनस एन बी ए इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. सो इट गिव्स अस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. दिस इज द, ये प्लस कर दिया है मैंने माइनस में. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF. आई एम राइटिंग इट, डिनोटिंग इट बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू. सो दिस इज equation for induced EMF. If you plot its graph तो ये ऐसे आएगा. तो we can say induced EMF varies sinusoidally. जो साइन का ग्राफ होता है बिल्कुल वैसे, t चेंज होता जाएगा तो ये एंगल चेंज होता जाएगा. ये एंगल चेंज होगा तो साइन के डिफरेंट एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो इंड्यूस EMF भी चेंज करती जाएगी. नाउ आप देखते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों है. देखिए, we know we have proved के induced EMF is n b a omega into sin omega t.
चलिए ये एंगल जो है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज 0, सो एट थीटा इज इक्वल टू, या ओमेगा टी, इसको थीटा कहो, चलो हम